to today's so previously we were learning the power of giving, and we had to take initiatives of start giving to people. So as discussed in the previous session, we will start with reflections from Mr. Rajiv and Ms. Sonal, and post that we will start the session with Sangeeta Didi. So welcome Didi, and I would request Rajiv sir to please unmute and share the reflection. Om Shanti Didi. Audible? Yes, audible. Om Shanti. So I would like to share my experiences from my learnings of Utthana. So the first experience which I would like to share is the let go skill, which I learned from Utthana. That, I remember the term called paperweight. So there were multiple experiences where, I kind of stayed with a thought in my mind that, aisa kyun ho raha hai? Yeah, why, somebody said like this to me, or why is somebody sad or unhappy? So, I started letting go the things, and that actually helped me a lot in, free up my mind from the negative thoughts. So it's like an open mind that I listen to, whether it's my team or it's my clients. So I say, okay, let it go. And I stop reacting to it. I start more listening. So that was one major learning from Utthana, which I had. The second major learning was firstly that I feel kind of a supernatural power which energized me, that there is someone out there, the ultimate power which energizes me, that, I can do better. I can be a better giver rather than, start expecting that, from someone that ki mere ko ye dega ya aisa karega waisa karega. I wanted to be a better giver, in terms of mentoring someone, in terms of training someone, in terms of giving or helping someone in their specific tasks. Third, obviously the meditation helped me, like closing your eyes for 10 minutes and, concentrating in the center of the forehead. So that actually energizes me a lot and given me a lot of peace. Fourth, I can mention that, I've inherited a lot of patience, in my mind, that, once you are patient, you have patience, you can listen better to others, you can empathize, you can understand that, they are coming from different background, different culture, different sanskar. They have their viewpoint as well, and you ought to listen to the other people, and then understand their problem, their point, and then guide them accordingly. And that gives you a lot of time as well to understand the trouble they're coming from, and then you can provide the right solution. So these are all my, major learnings, from Utthana, and really helping me a lot. And thanks to Didi. Didi, you are one of the greatest personality I've met, and virtually whatever learnings you have given, it's helping us a lot. That's it from my side. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti, very good. Wonderful experience. Okay, so there was one more sister who was to do it, right? Two of them were there. Yes. Didi, I guess Sonal has not joined yet. So if she joins, we can have her reflections at the end of the session. Yeah, so we can start. Yeah. Okay. So thanks a lot, Rajiv Bhai. So this is the growth. Utthan ho raha hai na? This is the progress. So we are graduating now. Not just learning, but we are graduating. Because when you experience, you are growing. If we just listen, that is also fine, but we are learning. But after learning, we want a degree. So the experience is the degree. So I'm sure most of them, सब लोगों ने भी किया होगा ना? Experience तो होगा सबको पास कुछ ना कुछ, पर आप बताते रहेंगे टाइम टू टाइम. तो 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं, एकदम डीप पीस, and we'll just clean our slate so that we want to write. Baba, the Supreme Father, would write on it.
So let us first clean our slate. कल कुछ भी हुआ, अभी तक कुछ भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ, कुछ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग था माइंड की स्क्रीन पे, मिटा देते हैं. फील करें कि द रेज ये सब निकाल रहा है माइंड की स्क्रीन पे. एकदम क्लीन हो गया माइंड का स्क्रीन. आई द पॉइंट ऑफ लाइट और माइंड स्क्रीन एकदम क्लीन. And I am now ready to write a new chapter of today, that is the power of peace. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. So, सभी रेडी है? माइंड स्लेट एकदम क्लीन है, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ. नाउ विल डू, आज है, yesterday we until now we were doing power of giving. आज हम करेंगे power of peace. अब देखो, हमने peace की the definition of normal. Peace is normal और anger is normal. Hurt is normal, love is normal और hurt is normal. आप सभी चैट में एक्टिव रहने, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो लेट मी नो. सो डाउट इज नॉर्मल और ट्रस्ट इज नॉर्मल. ओके, ट्रस्ट, अच्छा डाउट इज नॉर्मल किसी ने लिखा है, वेरी गुड. ओके, ट्रस्ट. सो पीस, लव, ट्रस्ट, ये तीनों नॉर्मल है. और एंगर, हर्ट, डाउट, ये एबनॉर्मल है. राइट? डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? Whenever we say definition of normal, कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब क्या है? कि वन विच इज नेचुरल. ओके, वन विच इज, या समवन रोड, कि जो स्वयं के लिए भी अच्छा हो और दूसरे के लिए भी अच्छा हो, इसको कहेंगे ना नॉर्मल. तो अगर पीस, लव, एंगर, अगर ये नॉर्मल है, पीस, लव, हैप्पीनेस, तो फिर क्योंकि ये मेरे लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए अच्छा है. नॉर्मल का डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज क्यों अंडरस्टैंड करना? क्योंकि जब वो चीज हमको लगता है ना नॉर्मल है, तो हम किसी भी वे से, जब हमको पता है 198 नॉर्मल है टेम्परेचर, तो क्या करेंगे? जब तक वो 98 नहीं आए, 99 में आपको फील कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम गोली लेते रहेंगे कि नॉर्मल है. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सभी एंजल्स अपना अपना दर्शन देंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि ऑल आर एंजल्स. दोज हु कुड कंटिन्यू, लिसन, देन डू इट. तो सभी एंजल एकदम प्रकट हो जाएंगे, जैसे वो बताते हैं ना कि एकदम प्रकट हो गए, तो इमीडिएटली सब एक साथ प्रकट हो जाए. हाँ देखो, क्योंकि एंजल्स की भाषा समझ सकता है, तो जो जो एंजल्स है वो भाषा समझ के प्रकट होते जाएंगे. हाँ, कितना अच्छा लगता है. इट्स एज गुड एज जो वहां हम दिखाते हैं ना टीवी पे कि एंजल्स आए, दिखाई दिए. जो भी गुप्त है वो भी होते जाएंगे. So I was talking about the definition. तो जब तक वो नॉर्मल का पता नहीं होता है, तो हम उसकी गोली लेते रहते हैं. और जैसे ही 98 आ जाए, अब वो फीवर थोड़ा सा फील भी हो रहा है, फिर भी हम कहेंगे अब गोली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मल है. तो एंगर नॉर्मल है, एंगर नेचुरल है, ये नॉर्मल है ना.
ये तो नहीं है ना, सभी बिलीव कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज का टॉपिक है पावर ऑफ पीस। क्योंकि जो चीज नॉर्मल होगी वो मुझे अच्छी सुख देगी। क्योंकि अगर एंगर नॉर्मल है तो हर्ट नॉर्मल है, तो फिर डिजीज नॉर्मल है। एंगर के कौन से डिजीजेस है? बहुत सारे डिजीज है। इमीडिएटली तो हेडेक होना शुरू हो जाता है, एंड देर आर मेनी अदर्स लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे उसको कैंसर कहो, चाहे डायबिटीज कहो, एवरीथिंग, सब कुछ नॉर्मल है। तो अगर एंगर नॉर्मल है तो डिजीज नॉर्मल है, और अगर डिजीज नॉर्मल है तो फिर हॉस्पिटल्स एबनॉर्मल है। फिर क्यों हॉस्पिटल में जाना होगा हमको, डॉक्टर के पास क्यों जाना होगा? तो इसलिए ये क्लियर होना है। तो वो अगर पीस नॉर्मल है, अब हम उसको नॉर्मल सी को रिस्टोर करेंगे। अब जब एक बार हम लोग सम ग्रुप ऑफ मतलब एक जगह बैठे थे, तो हमने कहा कि चलो आप ही बताओ कौन सा टॉपिक करें। तो एक बहन ने कहा कि स्ट्रेस पे बोलो, आजकल स्ट्रेस बहुत हो रहा है। अच्छा, दूसरे ने कहा नहीं पेरेंटिंग पे बोलो, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यंग थे सभी। अच्छा, तीसरे ने कहा अगर आप पेरेंटिंग पे बोल दोगे ना तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। राइट? डू यू ऑल एग्री? जस्ट इमेजिन व्हाट आर वी स्पीकिंग। पेरेंटिंग के कारण स्ट्रेस नॉर्मल हो जाएगा। सो व्हाट आर वी सेइंग? मेरे स्ट्रेस का रीजन कौन है? आज अगर मैं कहूं तुम्हारे कारण मेरी ये बीमारी है, एम आई इंसल्टिंग यू और लविंग यू? मतलब तुम्हारे कारण मेरी ये बीमारी है, तो पेरेंटिंग मतलब स्ट्रेस हो गया। सो वी वांट टू लर्न अबाउट पेरेंटिंग। तो किनके लिए हम कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस है? उनके लिए जिनको हम कहते हैं ये मेरी जान है, आई लव देम टू मच। उनके लिए हम कहते हैं कि दे आर द रीजंस ऑफ माय स्ट्रेस। तो मतलब क्या हम कर रहे हैं कि वॉट एवर इज, या वी आर, एंड इफ आई टेल एनीबडी कि यू आर द रीजन ऑफ माय स्ट्रेस, sometimes we say the office is the reason of my stress, the boss is the reason of my stress, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम उनको इंसल्ट कर रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि व्हेन आई से, तो व्हाट आई एम सेइंग कि इधर जो हो रहा है उसका पूरा जिम्मेवार कौन है? वहां कुछ हो रहा है। तो मतलब मेरी स्थिति का जिम्मेवार आप हो। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। इज इट ट्रू? बिकॉज दैट इज व्हाट इज स्ट्रेस। तो मतलब मैं इधर जो भी क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू। हमारे पास आजकल डिवोर्स वो कैटेगरी ज्यादा आ रही है जिसका मोर देन वन डिवोर्स हुआ है। तो क्या हुआ? क्योंकि यहां तुमने कुछ किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो एक था कि बिकॉज तुमने कुछ किया और मैंने मुझे जो अच्छा नहीं लगा मैंने बोला तुम प्लीज ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये करो, वो नहीं करो। अगर आपने नहीं सुना तो फॉरगेट, चेंज यू, आई विल चेंज यू। और मतलब एक होता है पहले बताना और एक होता है चेंज करना, कि आई चेंज द पार्टनर। बिकॉज क्या था, वॉट एवर आई एम क्रिएटिंग हियर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक सिंपल बिलीफ सिस्टम के कारण दिस इज कॉल्ड डाइवोर्स। डिवोर्स का मतलब क्या है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम फीलिंग। तो अब क्या हुआ? बिकॉज द गोल्डन फॉर्मूला डिफरेंट, इक्वेशन ही रॉन्ग था, तो अब उसमें भी कुछ ठीक नहीं हुआ। एंड जो भी आप कर रहे हो, तो वॉट एवर ईयर आई एम गोइंग इट इज बिकॉज ऑफ यू, वो भी चेंज कर दिया। सेकेंड, थर्ड,
इट्स जस्ट लाइक इट्स अ हॉबी, जैसे जॉब चेंज करते हैं ना, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि मुझे इम्पेशंस हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बॉस और द ऑफिस और द वाइफ और द पार्टनर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस. तो इसलिए पहले है हम आपको कहे चेंज होने, और फिर आई विल चेंज यू. अब जो ये कहता है कि इट इज बिकॉज ऑफ यू वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता. क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अभी तो एक फोन बजा, इसलिए मुझे डिस्टरबेंस हुई. मैं जैसे ऑफिस में पहुंची, उन्होंने गुड मॉर्निंग ठीक से नहीं किया, इसलिए डिस्टर्ब हुआ. अच्छा, उसके बाद फिर मैं जो कल काम देके गया था, वो व्यक्ति ने काम नहीं किया, इसलिए मैं डिस्टर्ब हूं. बिकॉज जो भी बाहर कुछ रॉन्ग करेंगे, बिकॉज ऑफ विच आई एम डिस्टर्ब. तो पूरे दिन ऐसे कितने सारी परिस्थिति आती जाएंगी जो अकॉर्डिंग नहीं होगी. तो कैन आई बी हैप्पी? अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट इज, अब क्योंकि मैंने गुड मॉर्निंग, आपने गुड मॉर्निंग नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा. अब वो आपने तो नहीं की, वो 1 मिनट की सिचुएशन है, उसके बाद तो गुड मॉर्निंग तो कितना टाइम का होता है? कुछ भी नहीं, खत्म, सिचुएशन खत्म. तो मिनट, सिचुएशन 1 मिनट का था, फोन बजा, वो सिचुएशन 1 मिनट का था, लेकिन मेरी डिस्टरबेंस कितने समय की होगी? 10 मिनट्स की होगी मेरी डिस्टरबेंस. और जब मेरी डिस्टरबेंस 10 मिनट्स की, बाय द टाइम मैं सीट पे पहुंची, आपने सुना नहीं मेरा, तो कल काम देके गया, आधा ही किया, जबकि आपको टाइम भी था. तो वो ऑलरेडी 10 मिनट तो वो चल रहा था, उस 10 मिनट में दूसरा आ गया और वो अब और डिस्टर्ब कराएगा, वो तीसरा. तो ऐसे करके 10-10 मिनट डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति होगी. तो मेरा क्या चलेगा? डिस्टरबेंस पूरा समय. और फिर हम कहेंगे घर में आके कि आज ना बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि फिर बाद में अपने काम ठीक नहीं किया. फिर बाद में बाय द टाइम, क्योंकि ये काम लेके मुझे बॉस के पास जाना था, तो बॉस को अधूरा काम किया, तो उसने ऐसा कुछ बोल दिया. अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे सबऑर्डिनेट्स के कारण था, तो वो तीसरा हो गया. अब उसके बाद फिर घर पहुंचे, तब तक क्या हो जाएगा कि एकदम कि टू मच, मेरा डाउन. अब फिर हम कहते हैं कि प्लीज 2 मिनट तो थोड़ा शांति से रहो, इतना तुम लोग क्या शोर कर रहे हो? 2 मिनट शांति से नहीं रह सकते? अब 2 मिनट शांति से कौन चाहता है? जैसे हम फिर परमात्मा को भी कहते हैं ना कि भगवान मुझे सिर्फ एक बूंद का प्यासी हूं मैं, तू तो एक बूंद का प्यासी, सिर्फ मुझे एक बूंद ही दे दो. ये कौन कह सकता है कि एक बूंद दे दो? कौन कहता है एक बूंद तो दे दो, सिर्फ एक बूंद? क्या प्रूव करता है कि वो इतना खाली है? वो कहता है प्लीज एक बूंद तो दे दो, सिर्फ एक ही बूंद से. सो व्हाई वी आर बेगिंग? क्योंकि एक बार कहना नहीं माना, तो ये वो रीजन वहां था कि प्लीज मुझे थोड़ा शांति चाहिए. अब मैं घर में आया हूं तो शांति हो. फिर हम कहते हैं कि बच्चों के साथ खेलेंगे ना, स्ट्रेस बस्टर्स है. तो मुझे क्या चाहिए? पहले अशांत करूं, एबनॉर्मल हो, डिजीज हो, फिर बाद में ये बच्चे स्ट्रेस बस्टर्स. और फिर वही बच्चे जब मेरी बात नहीं मानेंगे, तो वहां से स्ट्रेस लेके ये स्ट्रेस बस्टर्स भी क्या हो गए? एग्रेवेट हो रहा है. जस्ट इमेजिन कितना अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, उस समय मैं पीसफुल नहीं रही, उसके कारण. सो नाउ व्हाट इज नॉर्मल? सो नाउ सपोज दिस इज, इट्स 2 हैंड्स ना, ये 2 हाथ है. इस हाथ में कुछ होता है,
तो इससे का कनेक्शन है, इस हाथ से, इस उंगली में पेन है, इस हैंड का कनेक्शन है उसके साथ कुछ, इधर पेन होगा, इधर भी पेन होगा, है कुछ कनेक्शन? नहीं है ना कनेक्शन, मतलब इधर कुछ भी हो जाए वो इधर है। सो देयरफॉर यहां कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी हो जाए, there is no connection with this and that, it's completely different. So when we understand this difference, so then I can take the control of myself. अब just तो anger is normal नहीं है ना, anger is अच्छे से लिख दो, सभी लिख दे, anger is natural नहीं, anger is normal नहीं, तो क्या है दूसरा वर्ड? abnormal, फिर unnatural, right? तो right from the beginning कि मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हुआ रेड लाइट देख के, और फिर किसी ने गुड मॉर्निंग ओम शांति नहीं की तब देख के, टू किसी ने मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हक था, किसी की कुछ उसने मेरा हक नहीं दिया, टू दैट लेवल एंगर इज एबनॉर्मल। ओके, चलो 1 मिनट एकदम साइलेंस होके जस्ट विल सी एनी लास्ट सिचुएशन कल का जिसमें आपको लगा कि where I became bit disturbed, became bit angry, रिकॉल करो एग्जैक्टली पूरा अच्छे से वीडियो डिस्प्ले हो जाए, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को, वो समय को अच्छे से देखो जिसके कारण मुझे थोड़ा सा क्रोध आया। भले टाइम लगाओ लेकिन अच्छे से देखो उसको, उसने क्या बोला, फिर मैंने भी क्या बोल दिया, उससे मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ओके, इजी था। लास्ट जस्ट रिसेंट क्रोध आया है सबके पास सिचुएशन? सबके पास है? अच्छा, ओके ओके, नो एंगर जोन नहीं आया अभी तक मतलब। ओके, मांडवी बहन के पास भी है ओ माइन, फिर और बाकियों से तो फिर और कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा तो उसमें क्या हुआ? अच्छा थोड़ा आया लेकिन आया ना, बुखार थोड़ा ही था लेकिन आया तो सही ना। हाँ ओके, इरिटेशन, इट कुड बी इरिटेशन, रूठना, जोर से बोल देना, और मतलब एनी हर्ट, एनीथिंग, ये सब उसके बाल बच्चे हैं, उसकी फैमिली है पूरी उसमें। अच्छा, so now the situation is clear. Okay, seeing the same situation, same everything remaining same, वही व्यक्ति वैसे ही बोलना, उसी तरह की परिस्थिति, आपने काम दिया वो नहीं किया, now the same situation, just see yourself, could I have reacted in a different manner? क्या ऐसा पॉसिबल है? अब अपने आप को वापस देखो, एवरीथिंग रिमेनिंग द सेम, कांस्टेंट, और अब मुझे बोलना है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। कुड इट बी डिफरेंट? कुड इट बी इन सम अदर मैनर? ओके ओके, हाउ मेनी से इट कुड हैव बीन रिस्पॉन्डेड इन अ डिफरेंट मैनर? ऐसा कितने जन हैं? हैंड्स रेज करें। ओके, इट कुड हैव बीन, यस, सभी एंजल्स जिन जिन को भी एग्री होता है भले हैंड्स, इट कुड हैव बीन रिस्पॉन्डेड। ओके, तो वो जो रिस्पॉन्ड था जो आपने सोचा वो कैसा था? पीसफुल? आपने सोचा कि पीसफुल वे से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते ठीक है, तो इसका मतलब हु क्रिएटेड एंगर?
तो डिफरेंट वे आपने देख लिया। तो अब बताओ, हु क्रिएटेड एंगर? एक्सरसाइज करना है आपको। वन इज they create, second is B is I create, और C is both created। क्या कहेंगे? A, B, C। they create, they are responsible, दूसरा I, and third is C। A, B, C। got it? अच्छा, अच्छा, B, अच्छा, B, C, A, okay। B1 नहीं है, B है, या तो B या A या C। A they create, B I create, C both of us create। B, A is they create, उनके कारण मुझे गुस्सा आया। Okay, C both of them created, both of them are responsible। तो इसका मतलब ओके, बी हमने पहले ही देखा, ये सिचुएशन, ये मैं, इज इट कोई कनेक्शन है? आप सबने बोला नहीं। तो परिस्थिति ऐसी है, तो कौन क्रिएट किया? A, B, C। B होगा I created। तो I created, ये करने से क्या फायदा होगा? भाई मेरी जिम्मेवारी है, मतलब बिकॉज फिर जब मैं क्रिएट करूंगी, सीक्रेट है, पीपल तो ऑफ कोर्स कैन नॉट क्रिएट, वी ऑल अंडरस्टूड, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला है, लेकिन क्या सोचना है? अब जैसे मैं इधर जो भी बोल रही हूं, एस यू कुड सी, किसी ने ए बोला, किसी ने बी बोला, मेजॉरिटी बी बोल रहे हैं, बाकी ने सी बोला। सो जैसे जो मैं बोल रही हूं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके से है, या आप अपने हिसाब से उसको आंसर दे रहे हो? मैंने तो पूछा आपको, सबने डिफरेंट आंसर क्यों दिया? क्योंकि सबके डिफरेंट व्यूज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल है, फोन बजता है, क्या क्या आंसर हो सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं? इरिटेशन का क्या है, अभी भी स्विच ऑफ नहीं करता है, अभी कोई बोल रहा था ना। दूसरा है ठीक है बोलने दो। तीसरा क्या कहेगा? कोई हंसने लगेगा, रे देखा क्या क्या बोल रहा है। फोर्थ क्या कहेगा? कि अभी थोड़ा चुप बैठ जाना चाहिए। और फिफ्थ क्या कहेगा? कि ठीक है बोलने दो, म्यूट करने वाले म्यूट कर लेंगे। परिस्थिति एक है, तो अगर 5 रिस्पॉन्सेस है, तो इसका मतलब परिस्थिति और मेरा सोचना, ये तो पूरा इंडिपेंडेंट हुआ। नहीं तो सबके एक ही जैसा होता ना, किसी ने ये सोचा, किसी ने ये सोचा, किसी ने ये सोचा, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है, तो आई क्रिएटेड और दे क्रिएटेड, अब कौन सा आंसर आएगा? ए, बी, सी। इंडिपेंडेंट है, ये सब एग्री करते? इंडिपेंडेंट है, ये एग्री करते? ओके, तो फिर ए, बी, सी, अब कौन सा आंसर आएगा? ए, बी, सी, फिर तो बी आएगा, बिकॉज आई क्रिएटेड ना, इट इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। फिर हम कैसे कह सकते उन्होंने किया? दिस इज द सीक्रेट, अपनी जिम्मेवारी खुद लेना, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। तो जब हम कहते हैं कि बड़े हो गए ना, तो अपने परिवार की जिम्मेवारी, मीन्स यू हैव बिकम बिग, नाउ यू हैव टू टेक। तो क्या अपनी स्टेट ऑफ माइंड की जिम्मेवारी मैं ले सकती हूँ?
दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। तो अब उन्होंने जो भी किया, चाहे बड़े से छोटी परिस्थिति हो या बड़े से बड़ी सिचुएशन हो, तो इसका मतलब उसकी जिम्मेवारी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पीपल कैन जस्ट स्पीक और डू, दे कांट क्रिएट इन माई माइंड। फोन बजा और मुझे इधर सोचना, फोन बजता है, फोन मेरे सोच को थोड़ी एक्टिवेट करता है। फोन तो अपना बजेगा। तो इस कारण people can just speak, they can't create. और when I say I created, सबसे important है, then the power is in my hand, मेरे हाथ में है। और जब मेरे हाथ में है कोई काम, तो मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं वैसे उसको कर सकती हूँ ना। यही तो सीक्रेट है। अदरवाइज क्योंकि आपके हाथ में है, तो एंगर मतलब क्या, the remote control of my mind is in their hands। तो उससे क्या होगा, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा ना, तो वो जो चाहेगा वो चैनल देख सकेगा। तो आप आपके पास मेरा रिमोट कंट्रोलर है, क्योंकि आपने गुड मॉर्निंग नहीं की, मैंने जो काम दिया आपने नहीं किया, तो आपके पास मेरा रिमोट कंट्रोलर है। तो आपका मेन फिर एम क्या होता है कि अच्छा ठीक है, गुस्सा होने तो, काम नहीं करने का मतलब क्या है, दूसरे को डिस्टर्ब करना। तो उन्होंने वो चैनल ऑन किया और हमारा वो चैनल ऑन हो गया, क्योंकि कंट्रोल किसके पास था, उसके पास था। कितनों को कंट्रोल दिया हुआ है फिर, कौन किस किस के कारण, रेड लाइट के कारण भी क्रोध आ जाता है। किसी ने गुड मॉर्निंग की नहीं की तो क्रोध आ जाता है, खाना गर्म नहीं हो तो क्रोध आ जाता है। यस ब्रदर्स, ऑल द एंजल्स। ऑफिस से आई और मुझे पानी नहीं मिला तो क्रोध आ जाता है, राइट। फिर बॉस ने उसको पूछा और मुझे नहीं पूछा, हम लंच में बैठे थे, इसको ऑफर किया मुझे नहीं किया, वो उसी से बात कर रहा था तो क्रोध आ जाता है। तो इसका मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल, पूरा स्विचेस इतनों के हाथ में है। तो मैं तो हेल्पलेस हुई ना फिर तो, कंप्लीटली। एंगर मीन्स हेल्पलेस स्टेज, इसलिए एंगर को हेल्पलेस कहेंगे। तो therefore नाउ क्या कहेंगे, अब कुछ भी हो जाए, नाउ वी हैव अंडरस्टूड, अब तो एग्री हो गया, आई क्रिएटेड, बी है ना, एवरीवन दोनों हाथ कर दो ताकि फिर एकदम क्लियर हो जाए कि यस आई क्रिएटेड। इससे क्या होगा, आई एम द किंग। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे क्या क्रिएट करना है वो मेरे ऊपर। यस वंडरफुल, सबके हाथ आ रहे हैं। हाँ हाँ, देखो वो कहते हैं कि सलाद में ग्रीन चिली नहीं हो तो भी गुस्सा आ जाएगा। बहुत अच्छा। तो एक ग्रीन चिली वैसे ही तेज है और साथ साथ में गुस्सा भी। तो चाहे वेजिटेबल है वो आपको क्रोध दिला सकता है, बहुत कुछ है वो आपको क्रोध दिला सकता है। यही हो गया ना। तो अब हमको क्या क्रिएट करना है, नो एंगर जोन। तो नो एंगर जोन। अब एक्चुअली क्यों हम कहते हैं कि खाली एंगर खुद नहीं करो, बल्कि रेडी हो कि जो भी मेरे आसपास है ना, वहां भी कोई गुस्सा नहीं करेगा। ये नो टोबैको जोन जब करते हैं, क्या उसका रीजन होता है कि टोबैको जो पीता है उसको तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कोई उसको उस स्मोक को कोई ले भी लेना, पैसिव स्मोकर भी होता है ना, उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए तो उसको कह दिया नो टोबैको, यहाँ इस एरिया में नो टोबैको। तो घर में ऐसी कौन सी एरिया है जिसमें हम कह सकते हैं नो एंगर जोन। ऑफिस में है, ऐसा कर सकते, अपने आसपास कि नहीं यहाँ कोई क्रोध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, और अगर करेगा
तो मुझे तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं किस में बैठा हूं। तो हाउ मेनी कैन क्रिएट द नो एंगर जोन हियर? इधर कर सकते हैं ना। तो जब हम अपना एरिया में मैं खुद क्रिएट नहीं करूंगी, तो फिर दूसरा उस जगह शांति ऑटोमेटिक है। और उस जगह, क्योंकि देखो व्हाट इज एंगर, एक व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, राइट, और जो बोल रहा है देने में लेना समाया हुआ है, क्योंकि जो क्रिएट करेगा वो सबसे पहले किसको मिलेगा? मैंने दिया, सपोज मुझे यहाँ फ्रूट्स देना है आपको, तो मुझे 4 जनों को 4 एप्पल्स देने हैं। मेरे पास कितने एप्पल चाहिए? 4 एप्पल चाहिए ना। तो मुझे सपोज मेरे एक शब्द से 4 लोगों को क्रोध, गुस्सा आया, हर्ट हुए, तो मेरे पास कितना होगा? उन चारों को जितना होगा ना उतना मेरे पास है। तो ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी? देने वाले को या लेने वाले को? किसको मिल रहा है फर्स्ट? क्योंकि जो देगा उसके घर में तो पहले ही होगा। तो अगर मैं आपको क्रोध दे सकती हूं तो मेरे पास वैसे ही ज्यादा होगा। तो मेरा डैमेज पहले से ही निश्चित है, क्योंकि इधर क्रिएट किया है। और इसलिए देने में लेना समाया। Therefore what we said, power of giving. So when I create peace, automatic I will देने में लेना समाया। ऐसे नहीं कि उससे मिलेगा, लेकिन जब मैं दे रही हूं उसी समय मुझे, तो मैंने 10 लोगों को पीस दिया तो क्या हो जाएगा? मुझे उतना पीस यहां फील होगा। अगर मेरे पास 4 लोग आए तो लेने वाले के पास चॉइस है। देखो आपने क्रोध किया ना, या मुझे एप्पल देना है, तो आपके पास चॉइस है ले या न ले, लेकिन देने वाले के पास, उसको तो एप्पल रखना ही पड़ेगा। तो मुझे क्रोध देना है ना, तो मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं, और आपके पास चॉइस है। तो हु इज द लूजर? इस कारण जब हम जितना देते हैं, कुछ भी बात हो, अब मुझे क्या देना है? पीस, शांति से। और वैसे भी मेरा पर्पस क्या है? सपोज मुझे कुछ बोलना है, क्योंकि वो नहीं समझ रहा है या मे बी वो इग्नोर कर रहा है, व्हाटएवर, तो अब क्या होगा कि व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग, हम किसी की भी बात, आज आप अच्छे से समझ पा रहे हैं हमारी बात को? सब कुछ शांति से बात को अच्छे से समझ सकते हैं या गुस्से में बात को समझ सकते हैं? गुस्से में एक्चुअली हमको बात पर कंसंट्रेट नहीं, वो इश्यू पे कंसंट्रेट नहीं होते, हमारा फोकस कहाँ हो जाता है फिर? उसका क्रोध पर। तो इसलिए मुझे वो बात समझ में नहीं आती, ऐसा अनुभव है ना। अदरवाइज मे बी वी विल बी वेरी टैलेंटेड, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे एक्सप्लेन भी करना है किसी को, तो जितना शांति से उतना एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए पीसफुली, पावर ऑफ पीस रिजल्ट्स। तो एक तो हम जितना एसेंशियल हो उतना बोलेंगे। क्रोध में क्या होता है, जो नहीं जरूरत है वो भी बोल देते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसलिए पीस मतलब, एंड दूसरा अदर्स कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड, एंड दैट इज माय सक्सेस। दूसरा मुझे समझ ले जो मैं चाहती हूँ। और फिर क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम अटैच्ड हो जाते हैं आफ्टर एक्सप्लेनेशन। समझा दिया, अब डिटैच। ओके फाइन, नाउ इट इज अप टू हिम, करना है नहीं करना है। नहीं करना है, आई हैव द ऑप्शन, मुझे क्या करना है फिर? सो व्हाई डू आई टेक, मतलब मैं, वो कर नहीं रहा है,
और मुझे क्रोध आ रहा है, मैं ज्यादा क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने आप को बीमार करती हूँ और फिर घर में जाके उसको, उस टोबैको को दूसरे को भी दे रही हूँ, तो उनको भी बीमार कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बाद बीमारी। एक जगह ये था, बेटा 47 एंड द फादर कितना 74, दूसरा फिगर इंटरचेंज करके, एंड बेटे को बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, तो नेचुरलिस्ट फिर क्या कहेंगे, बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ स्ट्रेस होता है, राइट? और क्रोध भी ज्यादा। और फादर जो है वो बहुत शांत एंड ही इज इन द नॉलेज एक्सेट्रा। बिजनेस दोनों कर रहे हैं, भोजन सबसे बेस्ट, न्यूट्रिशियस, कोई कमी नहीं है, सुबह ये वो व्हाटएवर, प्राणायाम, वॉकिंग, सब कुछ कर रहे हैं। 3 मंथ्स का H1BC वो होता है ना, डायबिटिक का टेस्ट कराया। किसको डायबिटीज होना चाहिए? 74 और 47। 70 देखो, 74 47 दोनों आ गए आंसर। 74 वाले को 98 99 100% एब्सोल्युटली नॉर्मल, और बेटे को सीवियर डायबिटीज 400, 47 की एज, एवरीथिंग रिमेनिंग सेम, इसमें क्रोध और इसमें शांति। तो जितना हम शांत रहते हैं उतना हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। 74 तक एंजॉय किया, ये 47 की एज में बीमार हो गए। व्हाट डू यू गेट? इसलिए दिस इज कॉल्ड, देयरफॉर मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। आज से हम होमवर्क ले ले, कुछ भी हो जाए मुझे क्या करना है, ले लेंगे आज से। और वो कैसे होता है? ये छोटी छोटी बात में कुछ भी हो जाए, नो एंगर एंड नो एंगर सो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड। ये होमवर्क करेंगे, ये होमवर्क। तो देखो अपने पूरे सिचुएशन को। अब हम मेडिटेशन करते हैं कि मेडिटेशन, बिकॉज यही साइलेंस का मेथड है मेडिटेशन। सो जस्ट विल टेक अ वो जो होमवर्क है, अपने आप को शांत, पॉइंट ऑफ लाइट फील करते। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा, एकदम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। See yourself as a point of light, और मैं शांत स्वरूप, क्योंकि ये नॉर्मल है। और परमात्मा से शांति की किरणें मेरे ऊपर, और अब देखो 1 मिनट इस तरह अभ्यास किया, आई एम पीसफुल, परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब हम ऑफिस के लोगों के सामने जा रहे हैं। उसने ठीक से बात नहीं की,
मैं शांत स्वरूप याद दिलाएंगे। उसने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, मैं शांत स्वरूप। घर में गए, बच्चे ने विश नहीं किया, मैं शांत स्वरूप। ओम शांति। So therefore, simple homework. मैं शांत स्वरूप। I am a peaceful soul और no anger. इतना सा भी, slightest भी no anger. And then second is, कुछ भी हो जाए, I will take the responsibility for anything going in my mind. Clear? Okay. Everyone will do. ये सबके फायदे के लिए है होमवर्क, लगता है फायदे के लिए है। किसी का घाटा तो नहीं हो रहा है होमवर्क करने से? नहीं हो रहा है ना, लॉस नहीं हो रहा है, बेनिफिट होगा। ओके, सो देयरफॉर फिर कितने जन करेंगे नो एंगर जोन? ठीक है, अभी पहले थोड़ा किया था, फिर कम हुआ, अब जो करेंगे 0। इज इट ओके मांडवी बेन? अब 0। ओके। So दीदी, सोनल is here and शुरुआत में हम उनसे नहीं बात कर पाए। Sonal, can you just unmute yourself and share your experience and also conclude the session then? Oh, that's a huge responsibility. I thought मैं बस पिछले सेशन में मैंने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और तब आपने ये बताया था कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए क्योंकि हर कोई अपने स्वभाव के मुताबिक बर्ताव रखता है। और पिछले हफ्ते ही मेरी एनिवर्सरी थी, और हर एनिवर्सरी में मुझे हमेशा निराशा होती है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, ये मेरे नेचर में है अभिव्यक्ति करना और किसी भी अच्छे भाव को व्यक्त करना जो कि दूसरी तरफ से नहीं आता है। इस बार मुझे वो कोफ्त नहीं हुआ, करती मैं हर बार हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये समझ के किया कि ये मेरा स्वभाव है और शायद दूसरे के स्वभाव में ये है ही नहीं, तो उससे अपेक्षा रखना फेयर नहीं होगा। तो बड़ा अच्छा बीता। अच्छा बीता ना जी। और जो 5 बार जगदम्बा से कनेक्ट करने का फॉर्मूला आपने दिया, वो भी मैं 5 बार तो नहीं लेकिन 2-3 बार तो अक्सर हर दिन कर रही हूँ, कई दिन 5 बार भी कर पाती हूँ। उससे ओवरऑल दिन भर में जो मन में शांति और उमंग रहता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती मेरे प्रीवियस स्टेट ऑफ माइंड से। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। तो इसलिए शायद एनिवर्सरी को एंजॉय कर पाए, नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाते। नहीं तो हमेशा ये लगता रहता है कि एंजॉय नहीं सोचता, कुछ भी नहीं सोचता इसको। दूसरे एंजॉय करते हमारी एनिवर्सरी में, खा पी लेते, हम लोग ही नहीं करते। जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा। थैंक यू। सच अ गुड एक्सपीरियंस। सब लोग, हम तो बहुत मोटिवेटेड है आप लोग का सुन के। सो ओके, Thank you, Didi. Thank you everyone for joining, and I hope that we all continue to do the homework week on week, और आत्म उत्थान की ये जो जर्नी है उसके ऊपर हम सब अग्रसर हों। Thank you. ओम शांति।